I will cover the topic of basic grammar, parts of speech, adverb. Let's look the adverb and its kind. Read the sentences and see the function of adverb. आप ये sentences पढ़ो और adverb के functions देखो कि वो कैसे work करता है. सबसे पहला sentence है an adverb can modify a verb. जो एक adverb होता है वो एक verb को modify करता है. The fox run quickly. Here quickly modify run. जो quickly word है आपका उसने modify करा है run को जो कि एक verb है. An adverb can modify an adjective. और एक जो adverb होता है वो आपका adjective को भी modify करता है. See the example. Leela is a very beautiful girl. Very modifies beautiful which is an adjective. जो very word है वो एक beautiful को modify करता है जो कि आपका एक adjective है. तो इससे दो चीज proof हो गई कि जो adverb होता है वो modify करता है verb को, second adjective को. Let's look the third point. An adverb can modify another adverb. जो एक adverb होता है वो दूसरे ही adverb को भी modify करता है. She sings extremely well. Extremely modifies well. जो आपका extremely word है उसने modify करा है well को जो कि आपका एक adverb है. See the fourth point. An adverb can modify a preposition. एक जो adverb होता है वो आपका preposition को भी modify करता है. See the example. The bird flew exactly over our head. Exactly modify over a preposition. जो exactly word है उसने modify करा है एक preposition को. An adverb can modify a conjunction. एक adverb conjunction को भी modify करता है. I dislike him simply because he is a liar. Simply जो है उसने modify करा है किसको? Because को जो आपका एक conjunction है. An adverb can modify a determiner. He has hardly any friend. Hardly modify any a determiner. An adverb can modify a phrase. तो आपने देखा कि अभी तक adverb क्या क्या modify करता है. There is one more thing left. An adverb can modify a whole sentence. Unfortunately, he couldn't continue his studies. Unfortunately, modify the whole sentence. Here, if you came to know that कि adverb क्या क्या modify करता है. Verb को, adjective को, दूसरे adverb को, preposition को, conjunction को, determiner को और एक खुद के full phrase को. तो यहाँ से हमने जाना है कि जो adverb होता है वो एक sentence को मतलब basically आपके parts of speech में सबको ही modify करता है except noun और pronoun. Let's look the definitions. An adverb qualifies a verb, an adjective और another adverb. जो adverb होता है वो आपका एक verb को qualify करता है, एक adjective को qualify करता है और एक दूसरे adverb को. Adverb को हम हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं. वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं या adjective की they call adverb, क्रिया विशेषण. See the second definition. An adverb is a word used to qualify any parts of speech except a noun or pronoun. जो adverb होता है वो qualify करता है सारे parts of speech को. Parts of speech आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं. Noun, pronoun, verb सारे के सारे. Except कि सिर्फ किसको छोड़ के एक noun को और एक pronoun को. But there is a note. As a general rule, an adjective qualify a noun or pronoun. एक general rule के हिसाब से जो adjective होता है वो qualify करता है noun और pronoun को. But some grammarians thinks that in some exceptional cases an adverb may also modify a noun or a pronoun. लेकिन कुछ जो grammar के head होते experts होते उन्होंने कुछ कहा था कि जो adverb होता है वो noun और pronoun को भी modify करता है. See the examples. Even Rabindranath praised Charat Chand. Even here modify Rabindranath. जो even word है एक adverb उसने किसको modify करा है? रविंद्रनाथ को. रविंद्रनाथ एक noun है, proper noun है. See the second example. Only he dared to enter the fire. Only जो word है it's also an adverb. What it modify? उसने क्या modify करा है? He को जो कि आपका एक pronoun है. Personal pronoun का third person. So whatever we came to know conclusion of about this note,
However, we may to a logical conclusion that the adverb even, only, etc. जो इस तरीके के adverb होते हैं, even हो या चाहे only हो, ये क्या modify करते हैं पूरा sentence, as their force is laid upon not only the noun and pronoun but also the verb covering the whole sentence. जो आपके कुछ ये pronoun होते हैं उनको जो कवर अप करता है, उनको जो एडवर्ब करता है, उनको क्वालिफाई मॉडिफाई करता है, वो आपके सिर्फ नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स के ऊपर ले डाउन नहीं होता है, वो उसमें जो सेंटेंस में वर्ब होती है जो पूरे सेंटेंस को कवर अप करती है उसको भी मॉडिफाई करता है. लेट्स लुक द यूजेस ऑफ एडवर्ब. देर आर 4 वेज. जो आप एडवर्ब है, आप एडवर्ब को इन चारों तरीके से यूज कर सकते हैं. एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, इंट्रोडक्टिव, एडवर्ब पार्टिकल्स. इन चारों तरीके से आप एडवर्ब को यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में. सबसे पहला देखते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडवर्ब क्या होता है. एट्रीब्यूटिव एडवर्ब का यूज क्या होता है. एन एडवर्ब इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली व्हेन इट क्वालिफाई अनदर वर्ड आफ्टर इट. जो एट्रीब्यूटिव एडवर्ब होता है वो कब यूज होता है, जब उसे अपना दूसरा वर्ड क्वालिफाई करना होता है, और ये हमेशा वर्ड के बाद आता है. सी द एग्जाम्पल, ही डिड नॉट द वर्क वेरी बैडली, she shouted very loudly, it is entirely long. मतलब जितना भी आपने देखा कि जो सेंटेंसेस है वर्ब के एग्जाम्पल है एडवर्ब के, ये हमेशा दूसरे वर्ड के बाद आते हैं. या का जो वर्ड है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, शाउटेड को क्वालिफाई कर रहा है. इन सब प्रेडिकेटिव एडवर्ब क्या होता है. एन एडवर्ब इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली व्हेन. एक जो एडवर्ब होता है वो प्रेडिकेटिव यूज में कब होता है. बीइंग प्लेस्ड इन द प्रेडिकेटिव पार्ट qualifies it in the subject part and there is no other word after the adverb to qualify or modify. ये आपका प्रेडिकेटिव पार्ट को यूज करता है. प्रेडिकेटिव पार्ट अगर इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट का नहीं याद होगा, नहीं ध्यान होगा, आई पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक फ्रॉम देयर. प्रेडिकेटिव पार्ट होता है जो सब्जेक्ट वर्ब के एक्सेप्ट जो पार्ट बच जाता है सेंटेंस में, दैट कॉल्ड योर प्रेडिकेट पार्ट. तो ये उसको क्वालिफाई करता है. लाइक द एग्जाम्पल वर देयर, इट इज हेयर, इट इज देयर, इट इज एवरीवेयर. तो इट यहाँ पे उसका सब्जेक्ट पार्ट एज अ यूज हुआ है. सी दी थर्ड वन, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब. इंट्रोडक्टरी एडवर्ब. इंट्रोडक्टरी एडवर्ब क्या होती है. व्हेन देयर और हेयर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एज एन इंट्रोडक्टिव वर्ड. जब आपका देयर और हेयर जो दो वर्ड है वो आपके किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वो आपका इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाते हैं. लेट्स लुक द एग्जाम्पल्स. देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास, हियर इज अ टेलीफोन. बोथ वन यूज एडवर्ब पार्टिकल्स. सम प्रेपोजिशंस, कुछ जो प्रेपोजिशंस होते हैं जितने भी आपको दिए हुए हैं, दे मे बी यूज्ड एज एडवर्ब. ये एडवर्ब की तरह यूज किए जाते हैं जितने भी प्रेपोजिशंस वर्ड है. लाइक ही रेज्ड हिज हैंड्स अप, मे आई कम इन. ये सारे के सारे जितने भी प्रेपोजिशंस आपके जिसमें यूज हुए हैं वो एडवर्ब पार्टिकल्स की तरह यूज किए जाते हैं. काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के प्रकार कितने प्रकार के होता है. बेसिकली जो आपका एडवर्ब होता है वो 3 तरीकों में डिवाइड होता है. एक सिंपल एडवर्ब, एक रिलेटिव एडवर्ब, एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब जो होता है वो आपका 8 काइंड्स का होता है. इट्स कंसिस्ट ऑफ 8 टाइप. लेट्स सी ऑल द 8 काइंड. एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of reason or a purpose, adverb of affirmation and negotiation, adverb of intensifier and adverb of downtoners. ये सारे के सारे जो 8 पार्ट्स है ये आपके एडवर्ब के सिंपल एडवर्ब के अंदर आते हैं. सबसे पहला देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो कहाँ यूज होता है. जब आपका सेंटेंस का आंसर व्हेन में और हाउ लॉन्ग में आता है तो आप समझ जाओ कि वहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम है. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम से ही बेसिकली डिनोट करता है. लेट सी द एग्जांपल. व्हेन सबसे पहला आता है इसके अंदर. व्हेन कब. ट्रेन अराइव लेट. ट्रेन जो है वो लेट अराइव करेगी. कब. आंसर इज लेट. व्हेन का आंसर जो लेट होता है दैट इज योर एडवर्ब. हाउ लॉन्ग कितना. प्रिया फ्रीक्वेंटली गोज टू दिल्ली. प्रिया बहुत फ्रीक्वेंटली ही मतलब बहुत कभी कभी जाती है दिल्ली. ही सेल्डम प्लेज क्रिकेट. वो कभी कभी खेलता है. एंड थर्ड वन इज हाउ ऑफन. लगातार. इसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं. ये सारे वर्ड्स इसके एडवर्ब के अंदर आते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर
Now, often, before, since, ago, already, always, seldom. There are a lot of these kind of a word which came into the adverb of time. See the second one, adverb of place. Adverb of place में होता है आपका where, कहाँ से आना, और where from किधर को. See the example, stand here, यहाँ खड़े हो जाओ, means the answer is coming from the where. Come in, कहाँ, in will be your adverb. Where from? The horse galloped away. जो horse है वो galloped away. And the news has been collected locally. कहाँ से location, कहाँ से वो collected हुई है, वो locally है, means that is आपका किधर से, where from the where. So this, whatever the place came into the answer in a sentence, that is your adverb of place. इसमें भी कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे हेयर, देयर, ईदर, दीदर, हेंस, देंस, इनलैंड, लोकली, यूनिवर्सली. ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आपका आंसर आता है दो चीजों में, एक हाउ में, एक इन व्हाट मैनर में. लाइक भोला रेट्स क्लियरली, वो कैसे पढ़ता है, आंसर जो आया क्लियरली, तो दैट विल बी योर एडवर्ब ऑफ मैनर. और कौन से मैनर में, द सोल्जर फाउट ब्रेवली, जो सोल्जर्स थे उन्होंने कैसे लड़ा, बहादुरी से, किस मैनर में लड़ा. सो दैट विल ऑल्सो योर एडवर्ब ऑफ मैनर. इसके अंदर भी कुछ वर्ड्स आते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आते हैं. सारे के सारे वर्ड्स और बहुत सारे होते हैं. दीज आर ओनली द लिटिल एग्जाम्पल्स. एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होते हैं, तो नंबर से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने सारे, हाउ मेनी. आई टेक टी वंस अ डे, ही कम्स हियर ट्वाइस अ वीक. आपको नंबर डिनोट कर रहा है कि वो इतने. ऑफ डिग्री, कितना, हाउ मच, जिसके आंसर आपके हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट के सेंस में आते हैं, दैट विल बी योर कंप्लीटली एडवर्ब ऑफ डिग्री. लाइक ही इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, वो कितना प्रिपेयर्ड था, हाउ मच ही इज प्रिपेयर्ड, ही इज फुल्ली, द आंसर इज फुल्ली, तो इट विल बी योर एडवर्ब ऑफ डिग्री. To what extent? The fruit is almost ripe. You are partially right. कितना, लगभग. So whatever the answer is coming of these two questions, how much and to what extent, that will be your adverb of degree. इसके अंदर भी कुछ words आते हैं, almost, quite, altogether, ये सारे के सारे words, etc. also. Adverb of reason or purpose. रीजन और पर्पस का जो आंसर देते हैं आपको, दीज आर द क्वेश्चन जिनके जो आंसर्स होते हैं वो आपको एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस का आंसर मिलता है. लाइक फर्स्ट, दैट इज द रीजन. ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, ही इज हेंस अनेबल टू डिनाई इट. जिसका आंसर आपको इन सब में मिले कि वो स्कूल, उसने रीजन दिया हुआ है. रीजन और पर्पस जिस भी सेंटेंस के वर्ड में आपको मिल जाए, सो दैट विल बी कंप्लीटली योर एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस. पर्पस के अंदर आप देखोगे कि दैट ही इज इल, सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल. पर्पस, so will be your purpose here. So will be the adverb of reason और a purpose. इसके अंदर भी बहुत सारे words आते हैं जैसे hence, therefore, so that and many along there. 7th आता है आपका adverb of affirmation and negotiation. अफर्मेशन और नेगोशिएशन इनके वर्ड से ही क्लियर है कि जो अफर्मेशन होता है वो येस के सेंस में आएगा और नेगोशिएशन नो के सेंस में आएगा. बट हेयर नेगोशिएशन में एक चीज होती है कि जो आपका नो वर्ड होता है NO, वो कभी भी नहीं आता, वो नॉट के ही सेंस में आएगा या फिर नेवर के सेंस में. क्योंकि जो आपका नो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर इंक्लूड जाता है. जिसने एडजेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है, आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द फुल एक्सप्लेनेशन along with its type of adjective. Kindly watch the full video about to know what is adjective and its kinds. नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन एंड कंट्रास्ट. कंडीशन एंड कंट्रास्ट में क्या होता है, जब आपका कंडीशंस दी जाती है किसी भी सेंटेंस में, लाइक इफ यू विल गो, इफ यू विल कम, आई विल गो. अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो कंडीशंस रख रहे हैं यहाँ पे, तो इफ विल बी योर एडवर्ब ऑफ कंडीशन. कंट्रास्ट होता है आपका कंट्रास्ट देना, डैश इज रिच, इज अनहैप्पी. जबकि आप कंट्रास्ट दे रहे हो, रीजन बता रहे हो उसमें कि जबकि वो रिच है फिर भी वो खुश नहीं है. So although or thou will be your the word of adverb of contrast and conditions. See the 9th one, intensifier.
इंटेंसिफायर में क्या होता है, आप डायरेक्टली श्योर्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जो आपको एम्फसाइज करते हैं उस वर्ब का एक्शन करने में, उस वर्ब को क्लियर करने में, इंटेंसिफाई करने में. सो दैट विल बी योर इंटेंसिफायर. डैश इज अ पिक पॉकेट, श्योरली इट इज अ पिक पॉकेट. इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, एक्चुअली, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली. ये सारे के सारे वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ इंटेंसिफायर के अंदर आते हैं. नेक्स्ट आता है आपका डाउन टोनर. डाउन टोनर क्या होता है, कुछ वर्ड्स के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपके एक्शंस ऑफ वर्ब को, जो वर्ब जो कहना चाह रही है उसको डाउन करते हैं. सो दैट विल बी योर डाउन टोनर. जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, हार्डली, बेयरली, स्कैरली, नियरली, रादर, एक्सेट्रा. दिस इज समवट रॉन्ग, आई कैन हार्डली सी इट. मतलब आपकी जो वर्ब का जो एक्शन है उसको डाउन करना, उसको लो करना. सो दैट विल बी योर एडवर्ब ऑफ डाउन टोनर. तो ये तो थे कि सिंपल एडवर्ब के अंदर आपके 8 काइंड्स के एडवर्ब आते हैं. लेट्स लुक दी सेकंड टाइप, दैट इज योर रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब को आप कंजुगेटिव एडवर्ब भी कहते हैं. जो रिलेटिव एडवर्ब होता है वो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है और उनके बीच का रिलेशन दिखाता है, एंटीसीडेंट वाला, पुराना वाला, एक्सप्रेस और अंडरस्टूड, रियल अभी का भी और पुराना का भी. जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेशन शो करता है, 2 सेंटेंसेस के बीच में ज्वाइन करता है, वैसे ही आपका जो रिलेटिव एडवर्ब होता है उसका काम भी वैसा ही होता है. इसका कंजुगेटिव एडवर्ब तब बोला जाता है जब इसका जो एंटीसीडेंट होता है, जो इंसिडेंट होता है जिसमें आप आंसर देते हो पुराना है ना, जब ओमिट कर देते हैं, जब उसे निकाल देते हैं. यू विल सी द एग्जाम्पल आफ्टर द स्लाइड. A relative adverb makes a relative clause. एक relative adverb जो होता है वो एक relative clause भी बनाता है. Relative adverb are always placed inside a sentence and not beginning of a sentence. जो भी relative word आपके adverb के होते हैं वो हमेशा sentence के बीच में आते हैं, वो कभी starting में या last में नहीं आते. See the example of this relative adverb. Antecedent express, जब express करना, show me the house where he was born. Antecedent means आपके इंसिडेंट से रिलेटेड करना, एंटीसीडेंट से, जो आपके पुराने रिलेटिव्स होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या कुछ भी आपसे चीजों से जो आपसे रिलेटेड होता है, आपका पुराना. शो मी द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न, यहाँ पे एंटीसीडेंट एक्सप्रेस हो रहा है, उसको ओमिट नहीं करा जा रहा, उसको बताया जा रहा है कि वो कहाँ बॉर्न हुआ था, मुझे वो घर दिखाओ. सेकंड आता है एंटीसीडेंट ओमिटेड. इसमें उस वर्ब प्लेस को ओमिट करना, निकालना. यू मे गो वेयर यू लाइक. आपका जो आंसर आता है वो प्लेस अगर ओमिट करने के सेंस में आता है, निकालने के सेंस में, सो दैट विल बी कंप्लीटली योर एंटीसीडेंट ओमिटेड. नोट दैट जो द वर्ड होता है, THE, द, is sometimes used as a relative adverb which is always followed by another adverb of comparative degree. जो द वर्ड होता है वो आपका एक रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी काम करता है. जैसे जो सेंटेंस है, द मोर दे हैव द मोर दे गेट, जितना उनके पास होगा वो उतना ज्यादा मिलेगा. तो द जो मोर है, द मोर यहाँ पे आपका रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी इसने काम किया है. नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब. When adverb are used in asking questions, जब आपके जो एडवर्ब होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के सेंस में आते हैं, that will be your interrogative adverb. Where is Rahmana? इसमें प्लेस बता रहे हैं कि कहाँ है वो. When did he come? टाइम मेंशन करना. Why are you late? रीजन देना. आंसर जो भी आएगा वो रीजन का आएगा. How did he do that? किस मैनर में करा उसने. How many boys were there? नंबर कितने सारे बॉयज थे. बट आपको एक चीज याद रखने की है कि जो हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, ये 5 वर्ड आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के होते हैं. आप इन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब में यूज नहीं करोगे, लेकिन जो ये वर्ड्स होते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, दीज आर योर इंटेरोगेटिव एडवर्ब. ये आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं. ये बात तो थी कि हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिस्क्राइब कर लिए. अब बात आती है पोजीशन ऑफ एडवर्ब की, कि आप उस एडवर्ब को सेंटेंस में कैसे फिट करोगे. आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो किधर यूज होगा. Adverb of manner, place and time are placed after the intransitive verb or after the object of a transitive verb. अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ है, तो सीधे सेंटेंस सबसे पहला जो इसका पोजीशन फाइंड करने का होता है कि जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम होते हैं ये हमेशा आपके इंट्रांजिटिव वर्ड के बाद होते हैं या फिर आपके ऑब्जेक्ट के बाद किसी ट्रांजिटिव वर्ब के. सी दैट एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जाम्पल दिया गया है. इट इज रेनिंग हैविली. अगर ये इट इज रेनिंग होता तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल होता, लेकिन जो हैविली है वो एडवर्ब है.
तो वो मैनर के अंदर काउंट हो गया। कैसे बारिश होगी, किस मैनर में होगी, तो हेवीली, भारी। ही विल कम हेयर, प्लेस, ही विल कम होता तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल होता, लेकिन हेयर ऐड होने से ये एडवर्ब का है, तो टाइम डिनोट करना, प्लेस डिनोट करना। सेम हेयर विद आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, इसमें आपका टाइम डिनोट करा है। हम सी द सेकेंड वन, एडवर्ब See the second one, adverb of frequency which answer the question how often are normally put before the verb or between the helping verb and the main verb where there is any helping verb। जो ये verb होता है frequency वाला, adverb of frequency का, वो हमेशा आपके verb के और helping verb के बीच में आता है। Such adverbs are, जैसे कुछ adverbs होते हैं although, always, seldom, never, rarely, usually, जितने भी आपके एडवर्ब्स होते हैं ये सारे उसमें आते हैं। He always speak the truth, वो हमेशा सच बोलता है। She has never seen a tiger, उसने कभी भी टाइगर नहीं देखा। आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज हो गई और आपकी मेन वर्ब आपकी सीन हो गई, तो इन दोनों के बीच में भी ये वर्ड आते हैं जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे है या एडवर्ब इसमें से कौन सा है, तो यू कैन यूज दोज एग्जाम्पल्स। बट कुछ क्या होता है जिसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बी वाला, जैसे इज, एम, आर या वॉज, वर, उनके बीच में आया था, जैसे ही इज ऑलवेज बिजी, आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद आना। जो बी वर्ब्स होती है, बीई वाली वर्ब्स, जैसे इज, एम, आर, ये सारी आपकी बी वर्ब्स होती हैं। सी द थर्ड वन, एन एडवर्ब इज यूजुअली प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब। एडवर्ब आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही होता है। लाइक आई शैल सर्टेनली मिस हर, certainly is an adverb and shall and must helping as well as the main verb. An adverb may be placed at the beginning of a sentence for modifying a whole sentence, emphasizing and for asking questions। जो आपका adverb होता है वो स्टार्टिंग में भी रखा जाता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था जब वो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, वो पूरे होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, तो वो स्टार्टिंग में आता है। लाइक फॉर्चुनेटली यहाँ पे एडवर्ब है, वो ही को मॉडिफाई कर रहा है और फुल सेंटेंसेस को। When an adverb modify an adjective or another adverb, the adverb usually comes before it। जब भी आप एक adverb को modify करते हैं, एक adjective को या दूसरे उसको, तो वो हमेशा उससे पहले आता है, कभी भी बाद में नहीं आता। Like the book is very interesting, but do not walk so fast। They all are your adverb। ये आपको modify करते हैं आपके interesting को, fast को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को, भी हमेशा उनसे पहले आता है। बट द एडवर्ब इनफ, लेकिन जो एडवर्ब इनफ होता है वो आपका हमेशा बाद में आता है, जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करता है। यू वुड बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी लीव, लाइक उसने काइंड इसको मॉडिफाई करा है एडजेक्टिव को, तो वो उसके बाद में आया, उससे पहले नहीं आया। व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब, जब एक से ज्यादा एडवर्ब होंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एडवर्ब किसका है, तो वो हमेशा एमपीटी फॉर्म में होता है। मैनर, प्लेस एंड टाइम, सबसे इजी फॉर्म होती है एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम। रीमा संग स्वीटली इन द टाउन हॉल लास्ट इवनिंग। अब ये पूरा सेंटेंस है, इसमें एक से ज्यादा एडवर्ब है, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये हमेशा एमपीटी फॉर्म में होता है। मैनर, सबसे पहले मैनर, कैसे, रीमा संग स्वीटली, उसने कैसे गाया, स्वीटली, किस मैनर में गाया। इन द टाउन हॉल, उसके बाद कहाँ गाया, प्लेस दी हुई आपको, इन द टाउन हॉल। लास्ट इवनिंग, और कब गाया, टाइम आपको मेंशन है, दैट विल बी योर लास्ट इवनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडवर्ब, kinds of adverb, use of adverb. I hope that now you came to know all the types and all the kinds also in a very easy and a quick way. If you are having any problem or having any doubts regarding to any particular adverb, you can comment in the comment section. I'll provide you the